پیش خدمت ہے ناول میں اور موسیٰ، جسے لکھا ہے عذرا عباس نے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ رہی ہوگی۔ پہلا باب۔ موسیٰ میرا بڑا اچھا دوست تھا۔ دھوپ میں چمکتی ہوئی اس کی ناک خنجر کے نوک کی طرح پتلی اور چمکیلی نظر آتی تھی، یا مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے موسیٰ سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ زمین پر جھکا اپنی چھوٹی انگلی سے مٹی ہٹانے میں لگا تھا۔ زمین کھود رہا ہوں۔ کیوں؟ اس بھربھری مٹی میں تم کو کیا ملے گا؟ خزانہ۔ خزانہ؟ میں حیران ہو رہی تھی۔ کیا تم اپنی انگلی سے اتنی زمین کھود لوگے؟ ہاں۔ موسیٰ نے سر اٹھا کر مجھے گھورا۔ اس کے گھورنے پر میں پیچھے ہٹ گئی۔ تمہیں معلوم ہے خزانہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہانیوں میں خزانے کے بارے میں پڑھا تھا، جو ڈاکو کہیں سے چراتے ہیں اور زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ اپنے اتنے علم پر میں اترا اٹھی۔ ہاں، وہ مسلسل زمین کھودتے ہوئے سر جھکائے جھکائے بولا۔ میں اس وقت اسٹیٹس کانشیس تھی۔ موسیٰ جھونپڑی میں رہتا تھا اور میں مکان میں۔ موسیٰ کے پاس کوئی باورچی خانہ اور کوئی باتھ روم نہیں تھا۔ موسیٰ کی ماں ایک ہی جھونپڑی میں سب کو سلاتی، کھلاتی اور کھانا پکاتی تھی۔ میں نے موسیٰ سے کہا، تم یہ خزانہ لے کر پتہ ہے کیا کرو گے؟ وہ چھوٹی انگلی سے زمین کھودتے ہوئے ہنکارا۔ تم سب کے سب اسے نگل جاؤ گے اور تمہارے پیٹ پھول جائیں گے۔ صبح KMC کی گاڑی تمہیں پیچھے والے میدان میں دفن کر آئے گی۔ مجھے بلا وجہ کا مذاق سوچ رہا تھا۔ چپ بدبخت، خاموش۔ وہ مٹی جھاڑ کر اٹھا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے بہت سی مٹی میرے اوپر اچھال دی۔ میری سرمئی فراق اور سفید جوتے بھوری مٹی میں چھپ گئے۔ کمینے، حرامی، یہ گالی میں نے بڑی محنت سے یاد کی تھی۔ یہ گالی مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے ابا سے اس کے مطلب پوچھے تھے ایک بار۔ وہ نہایت اطمینان سے بولے، بیٹا اس کے مطلب بتاؤں گا تو اللہ میری زبان پر انگارے رکھ دے گا۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن یہ گالی مجھے یاد رہ گئی۔ اب بھی جب کوئی مجھے برا لگتا ہے تو میری زبان بے آواز اس گالی کو دہراتی ہے۔ موسیٰ مجھے اجلی نظروں سے گھورنے لگا۔ نہیں، تجھے مل جائے یہ خزانہ، اور تیرا باپ موٹر سائیکل کی بجائے موٹر پر بیٹھ کر جایا کرے، اور تو انگریزی سکول میں جائے۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ میں سرکاری سکول میں پڑھ رہی ہوں، جہاں تختی لکھائی جاتی ہے، اور ملتانی مٹی سے لیپی یہ تختی اکثر میرے سر پر بھی پڑتی رہتی ہے۔ بکواس بند کر، میں انگلش کی کتاب پڑھتی ہوں۔ ابا مجھ سے انگلش بولتے ہیں، تیرے گھر میں تو ہر وقت گالیاں بکی جاتی ہیں۔ میں جب بھی موسیٰ کی جھونپڑی کی طرف سے گزرتی تھی، موسیٰ کی ماں کی رونے، جھینکنے اور گالیاں بکنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہاں ہاں، موسیٰ چمکا، گالیاں میرے گھر میں بکی جاتی ہیں، لیکن سیکھ تو گئی ہے۔ میں نے ویسے ہی کچھ نہیں کہا۔ میں اب نرم پڑ گئی تھی۔ دیکھ موسیٰ، کیا واقعی تو یہ خزانہ نکال لے گا؟ اب میں دل ہی دل میں موسیٰ کا خزانہ نکال لینے پر کڑ رہی تھی۔ وہ پھر مستعدی سے زمین کھودنے بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، خزانہ نکالوں گا، اس نے عجیب نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، جیسے اس کی مفلسی کی ذمہ دار میں ہوں۔ اس کے جسم پر ایک لتا جوڑا جو اکثر میلا رہتا تھا۔ اس کے پاؤں ننگے رہتے تھے اور ان پر چھوٹے چھوٹے زخم نظر آتے تھے، سوائے اس کے چہرے کے، جس پر مجھے اکثر اس تصویر کا گمان ہوتا تھا جو میرے گھر کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تھی اور ابا نمائش سے خرید کر لائے تھے۔ بالکل دھلا ہوا وہ چہرہ کسی دن کے ابھرتے ہوئے سورج کی طرح نظر آتا تھا۔ میں اکثر موسیٰ کو چھیڑتی تھی، تمہارا منہ اتنا صاف رہتا ہے، باقی ہاتھ پاؤں اتنے گندے، اور سر، مجھے اس کے بال بہت اچھے لگتے تھے۔ میلے رہنے کے باوجود وہ ریشم کے لچھوں کی طرح ہوا میں ہلتے رہتے تھے۔ میں اس کے بال کبھی کبھی مٹھی میں پکڑ کر جھنجھوڑ دیتی تھی۔ تم مجھے اپنے بالوں کی وجہ سے اچھے لگتے ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہتا، بال تو تمہارے بھی ایسے ہی ہیں۔ اچھا، میں اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے بالوں پر نگاہوں ہی نگاہوں میں موازنہ کرنے لگتی، لیکن اس تعریف کے باوجود مجھے اپنے بال کبھی موسیٰ کے بالوں سے زیادہ اچھے نہیں لگے تھے۔ میں دیر تک موسیٰ کو زمین کھودتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی باتیں تو مجھ کو اکثر سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن یہ کام تو اور بھی میری سمجھ سے باہر تھا، جس کو میں موسیٰ کی تمام باتوں کی طرح اہم سمجھنے لگی تھی۔ اس وقت میری ناسمجھی مجھے موسیٰ کی باتوں کی طرف لے جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ سب تو اور پیچیدہ نظر آنے لگا تھا۔ جوں جوں وقت آگے بڑھ رہا تھا اور مجھ میں سمجھنے کی صلاحیت بڑھ رہی تھی، موسیٰ میری نظر میں اور اہم ہوتا جا رہا تھا۔ میرے اور موسیٰ کے گھر کے درمیان ایک میدان تھا جو تکون شکل میں بنا ہوا تھا۔
मेरे घर की तरफ आते आते उसका एक कोना रह जाता था, जिसके एक तरफ दरमियाने दर्जे के लोग रहते थे और उनमें से कुछ अपनी तमाम तर कोशिश से दरमियाने दर्जे से ऊपर जाना चाहते थे। उनका रहन सहन रख रखाव बताता था कि शायद वो इसमें कामयाब हो जाएं। शायद मेरे माँ बाप भी इसी ख्वाहिश का शिकार थे। मूसा की बस्ती इस मैदान के दूसरी तरफ थी। इस मैदान के लोगों के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो बहुत गरीब हैं। उनके पास रहने के लिए और पहनने के लिए अक्सर कुछ नहीं होता। उनके चूल्हे बहुत देर से जलते हैं। जब इस इलाके के मर्द दिन भर की मजदूरी के बाद रोजाना की कमाई साथ लेकर लौटते हैं तो उनके घर की औरतें इसी हिसाब से खाना पकाती हैं। हर झोंपड़ी में बच्चों की एक यलगार थी, नंगे भूखे और हवास बाख्ता बच्चे जो दिन भर धूल और धूप में लौटते रहते थे। उनके यहाँ स्कूल जाने का कोई रवाज नहीं था। वो अक्सर हमारे दरवाजों पर आकर खड़े हो जाते थे, टीवी दिखा दो। अम्मा जब कभी अच्छे मूड में होती तो टीवी का रुख दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ कर देती और बाहर के खुले दरवाजे से एक दूसरे पर झांक झांक कर और धक्के दे देकर टीवी देखा करती। वो भी जब उनमें से कोई साथी कहीं से यह खबर सुनकर आता कि आज टीवी पर कोई अच्छा ड्रामा आने वाला है, या जब अम्मा का मूड अच्छा होता। वो जब तक चाहती वो दरवाजा खुला रहता और जब चाहती बंद कर देती। ऐसा अक्सर कई घरों में होता। जब कोई इनको धत्कार देता वो दूसरे के घर पर पहुंच जाते। मैंने एक दफा मूसा से कहा, तुम्हारे घर में भी तो टीवी नहीं है, तुम बच्चों के साथ टीवी देखने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें अंदर बिठाऊंगी, तुम मेरे साथ बैठकर टीवी देखना। वो फनकारा था, मैं भीख मंगाओ की तरह तेरे दरवाजे पर बैठकर टीवी देखूंगा? और तेरी माँ जो जब मेरी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रही हो। तुम झूठे हो, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करती। हाँ हाँ, वो सर झटक कर बोला। वो तो शान दिखाती है कि उसके घर में टीवी है और तू भी मुझे इसीलिए बुला रही है। मूसा के तंज अगरचा के उस वक्त मुझे बहुत बुरी तरह मजरूह नहीं करते थे, लेकिन मुझे बुरे जरूर लगते थे। ये आखिर क्या बकता रहता है। लेकिन मूसा के उस तंज के बावजूद मैं अपने इलाकों के लड़कों के साथ नहीं खेलती थी। मैं जब घर से बाहर नहा धोकर निकलती, मेरे कदम खुद ब खुद मूसा को ढूंढने के लिए चल पड़ते, जो साफ सुथरे बच्चों और अपने इलाके के बच्चों से अलग थलग दूर किसी कोने में चुपचाप खड़ा कुछ तका करता था। मुझे देखकर मूसा के चेहरे पर चढ़ी हुई उदासी की तह पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट तैरने लगती और मेरी वो शाम उसकी इस मुस्कुराहट पर मुझे ताजा हवाओं से मिला देती। मेरी और मूसा की दोस्ती भी कुछ इसी तरह हुई थी। उस शाम अम्मा ने मुझे ताकीद से बाहर भेजा था। देखो, बाहर जाओ, लेकिन उन गंदे बच्चों से मत खेलना। गंदे बच्चे मेरे लिए एक अजूबा हो गए थे। बार बार की ताकीद ने मुझे उन गंदे बच्चों की तरफ आखिर पहुंचा दिया। वो पहला बच्चा मूसा ही था जो मुझे इस तरफ आते हुए देखकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ा था। अरे, तुम इधर क्यों आई हो? ये तुम्हारा इलाका नहीं है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैदान में कोई ऐसी लकीर नहीं थी जो मुझे इधर या उधर का फर्क बता देती। मैं गुर्राई। गुस्सा मुझे अक्सर जल्दी आ जाता है। हाँ, तो लकीर खींच कर रखो। तुम्हारा इलाका कहाँ से शुरू होता है? मूसा ने झट अपने नंगे पांव से लकीर खींच दी। ये लो, बस अब तुम उधर रहो और यहीं से ही घर की तरफ फूट जाओ। मैं उसके इतनी जल्दी किए हुए फैसले पर रूहान सी हो गई। लेकिन मैं क्यों नहीं आऊं? तुम्हारे इलाके में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? ये लफ्ज सुरखाब अक्सर अम्मा को बोलते हुए मैंने सुना था। मैं अटक अटक कर गुस्से में बोल रही थी, लेकिन मूसा तड़का, चल भाग उधर जहां तेरे इलाके के लड़के लड़कियां खेल रहे हैं। ये रिबन, ये जूते और ये तेरी चमकती हुई फ्रॉक। उसने एक पतली सी छड़ी से जो उसके हाथ में पहले से थी मेरी फ्रॉक, रिबन और जूतों को अपने तीर ठोकते हुए कहा, चल भाई भाग, ऐसा इधर कुछ नहीं है, तू तो पागल है। मैंने मूसा को बहुत गुस्से में घूरते हुए कहा। पहली दफा कोई चेहरा इतने गौर से मैंने देखा था। उस वक्त छठी क्लास में पढ़ रही थी। मुझे बहुत सी उस्तानियां बाज दफा घड़क चुकी थी। अम्मा अब्बा की भी कभी कभी झिड़कियां पड़ती रहती थी, लेकिन इस लहजे में यह लड़का मुझसे पहली बार मुखातिब हुआ था, और फिर इतना गंदा। मेरा ख्याल यही था कि गंदे बच्चे हमेशा दब कर रहते हैं। उसकी अकड़ देखकर गुस्से के साथ साथ मेरे दिल में जाने क्यों धीमी सी खुशी उठ रही थी, लेकिन साथ ही मेरा दिल लड़ने को भी चाहने लगा। मिटाओ इस लकीर को, मैं जहां चाहूंगी लगाऊंगी, मैंने उसे धक्का देते हुए कहा।
वो धक्का खाकर पीछे की तरफ लुढ़का। संभलते हुए उसने मुझे हैरानी से देखा और फिर हंसने लगा और हंसते हंसते बेहाल सा हो गया। मैं इस जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थी। मुझे तो ये पता था कि वो सख्ती से अपना पांव इस लकीर पर रख देगा या फिर मुझे धक्का देगा। उसकी हंसी से मैं परेशान हो गई थी। मैं उसे हंसता हुआ देख रही थी। उसके साथ के लड़के जो इस इलाके में उसी जैसे गंदे उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए थे। पहले तो उसे तकते रहे, फिर वो भी हंसने लगे। उन सब की हंसी ने मुझे शर्मिंदा सा कर दिया था। क्यों हंस रहे हो? मैं चिल्लाई। वो हंसी खत्म करके मुझे देखने लगा। तुमने वही किया जो तुम्हारे इलाके के बड़े लोग हमारे साथ करते हैं। तुम इतनी छोटी सी तो हो और धक्का बड़ों की तरह देती हो। इतनी जल्दी सीख गई ये सब? मुझे उसकी बातें अपने तमाम तर मायनों के साथ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मूसा का चेहरा ये सारी बातें करते हुए मुझे गंदा नजर नहीं आ रहा था। वो और चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और तीखी नुकीली नाक मैं गौर से देख रही थी। एकदम मेरा दिल उसे दोस्ती करने को चाहा। मैंने वो लकीर जल्दी से अपने सफेद पॉलिश किए हुए जूतों से मिटा दी। दोस्ती करोगे? मैंने 2 उंगलियां मिलाकर अपने होंठों से लगाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने मेरी आंखों ही आंखों में डालकर मुझे घूरा, फिर आहिस्ता से अपनी दोस्ती वाली उंगलियां अपनी कमर से इस तरह साफ की जैसे छुरी को तेज करते हुए किसी पत्थर या जमीन पर रगड़ते हैं। वो अपनी सिमटी हुई 2 उंगलियों को मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे ऐसा लगा जैसे 2 उंगलियां मूसा की नहीं थी, वो तो मेरी उंगलियां थी। मैंने अपने ही लमस को उसकी उंगलियों में महसूस किया। तुम्हारा नाम क्या है? मूसा, उसने गिरेबान को सीधा करते हुए कहा। मेरा नाम स्कूल में अम्मा ने ये लिखवाया था। मैंने भी स्कूल में पुकारे जाने वाला नाम उसे बताया। तुम्हारे 2 नाम हैं? उसने मुंह आगे की तरफ करके पूछा। नहीं अब्बा, मुझे घर में प्यार से पुकारते हैं। मैंने घर का नाम भी बता दिया। चलो ठीक है, देखेंगे कौन सा नाम पुकारने में अच्छा लगता है। मैं हंसने लगी। मुझे सब अच्छा लग रहा था। वो सारा वाकया मेरे जहन में आज भी अजबर है, अगरचा कि वो नक्शा नहीं खींच पा रही हूं जो मूसा के चेहरे से उठकर मेरे हवासों पर नक्श हो रहा था। कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ को मैं भूल जाती थी। कुछ ऐसी होती थी जो देर तक याद रहती थी, जैसे अपने अब्बा के कंधे पर बैठकर समंदर देखना। समंदर मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो हुक सी उठती थी और मैं अब्बा की टांगों से लिपटकर जिद करती थी कि मुझे समंदर पे ले चलें। मैं उनकी अकलौती औलाद थी, लिहाजा वो मेरी ज्यादा से ज्यादा फरमाइश पूरी करने पर मजबूर होते। अक्सर वो मुझसे ऐसी बातें करते थे जो मुझे इस दुनिया से बाहर ले जाती और अम्मा की दुनिया होती। अम्मा तो मुझे हर वक्त इस तरह देखती थी जैसे उनकी कोई कीमती शय हूं जिसे उन्हें संभाल कर रखना है। वो मेरे कपड़ों लत्तों के साथ साथ मेरे लिए ख्वाब भी देखती थी। जब वो मेरे साथ लेटी होती तो कहती, जब तू बड़ी होगी तो मैं तेरे लिए हीरो का सेट बनवाऊंगी, तुझे धूमधाम से ब्याहूंगी और तुझे इतना जहेज दूंगी कि मैं जहेज, धूमधाम और हीरे के सेट से मानूस नहीं थी। लिहाजा उनकी बहुत सी नसीहतों की तरह इन ख्वाबों को भी ऐसे ही सुनती जैसे वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखते हों। लेकिन अब्बा मुझे सड़क पर चलते हुए, समंदर पर टहलते हुए अजीब अजीब बातें करते। देखो, ये आसमान जो है इसका कोई किनारा नहीं है, ये इंसानों के ख्वाबों जैसा है। और ये समंदर जो आसमान से मिल रहा है वो दूर। वो इशारा करते, मैं उस इशारे की तरफ अपने पंजों के बल ऊंची होकर देखती। वो कभी नहीं मिलता, बस हमें नजर आता है। मैं भी अब्बा से बेअंदाजा सवाल करती जाती, किसी का जवाब वो देते और किसी का नहीं दे पाते। इस अरसे में मुझे भी जो याद रह गया है मेरे एहसास का हिस्सा है, ऐसे ही जैसे मूसा के चेहरे के नकूश जो पहली बार मेरी आंखों में उतरे थे। मैं जब इस मैदान से वापस हो रही थी तो दिल में पहली बार देर से घर लौटने का खौफ था। मैंने मूसा से कहा, अपनी लकीर से इधर आ जाओ और मेरे साथ चलो। मैदान में अंधेरा छा गया था। उसने उचक कर लकीर पार की जो मैं पहले ही मिटा चुकी थी। वो मेरे साथ नंगे पांव ही घर तक पहुंचा। बाहर दरवाजे से लगी मेरी माँ खड़ी थी। अम्मा मूसा को दूर से आते देख चुकी थी। ये तुम्हारे साथ कौन है? अम्मा ने हकारत से उचटती सी नजर डाली। मैंने मूसा को देखा। मूसा बेखौफी से माँ की तरफ देख रहा था। कौन है ये? अम्मा ने जोर से पूछा। अम्मा, ये मूसा है, वहां रहता है। मैंने उंगली के इशारे से उस झोंपड़ी की तरफ इशारा किया जहां वो रहता था, जो अब दूर से टिमटिमाते हुए जुगनू की तरह अंधेरे में नजर आ रही थी। अम्मा ने मेरा हाथ खींचकर मुझे अपनी तरफ घसीटा। शाम हो रही है, दोनों वक्त मिल चुके हैं,
तुमने इतनी देर कहाँ कर दी? मैंने देखा मूसा वापसी के लिए कदम बढ़ा चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रहा था। पहली बार मुझे अम्मा अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मूसा को अंदर आने के लिए नहीं कहा। मूसा तो मेरा दोस्त बन चुका था। हालांकि जब मेरी क्लास का कोई लड़का या लड़की मेरे घर आते थे तो अम्मा खूब आवभगत करती थी। आखिर मुझसे जब्त नहीं हो सका। अम्मा, तुमने मूसा को अंदर आने के लिए नहीं कहा? वो उस गंदे लड़के को तुम उसके साथ खेल रही थी। उसके पाँव में जूती तक नहीं थी और देखा तुमने कितने गंदे पाँव थे और कपड़ों से बदबू आ रही थी। मैं उनको जैसे एक ही सांस में बोलते हुए देख रही थी और सोच रही थी अम्मा ने अंधेरे में मूसा का चेहरा नहीं देखा होगा। इतने थके कदमों से मैं फिर अम्मा के पीछे पीछे घर के अंदर आ गई। अम्मा उस दिन देर तक नसीहतें करती रही, उन लोगों के साथ मत खेलो, उनसे मत मिला करो, उन लोगों की आदतें अच्छी नहीं होती, ये ओल फुल जुबान इस्तेमाल करते हैं, लालची होते हैं और न जाने क्या क्या। और मैं इस दौरान सोचती रही अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं? अम्मा को ऐसी कौन सी बात मूसा की बुरी लगी, जबकि रास्ते भर मूसा ने ऐसी कोई जुबान इस्तेमाल नहीं की जो मुझे बुरी लगी हो। और मैं देर तक उस बालकनी में खड़ी रही जहां दूर से मुझे वो मैदान और उसके कोने में वो झोंपड़ियां नजर आ रही थी, जिनके करीब दिन में धूल उड़ती रहती थी, लेकिन रात में उनके अंदर जलने वाली लालटेनें दूर से अंधेरे में कहीं कहीं से झांकती ऐसे नजर आती थी जैसे नन्हे नन्हे चिराग हवा में जल बुझ रहे हों। मैं वहां देर तक रही और सोचती रही मूसा इनमें से किसी एक झोंपड़ी में मौजूद होगा, वो जो मेरा नया नया दोस्त बना है। अम्मा की नसीहतें काम नहीं आईं। मूसा से मेरा मेल जोल बढ़ने लगा। मैंने स्कूल से आने का वो रास्ता अख्तियार किया जहां से मूसा का इलाका करीब था। मैं अक्सर उसी रास्ते से आती और मूसा से मेरी मुलाकात अक्सर होती। मूसा भी शायद मेरे ही इंतजार में खड़ा मिलता। उसके चेहरे पर चढ़ी हुई उदासी की तह पर मुझे ऐसा लगता कि मुझे देखकर उस पर मोहम सी मुस्कुराहट आ जाती। हम दोनों देर तक उस मैदान का चक्कर लगाते और बातें करते, वो बातें जो मूसा करता। वो मेरे लिए नई नहीं होती, मुझे अचंभे में डाल जाती, जिन्हें मैं बाद में दिल ही दिल में दोहराती और याद रखने की कोशिश करती। लेकिन जब मैं उस वक्त पर जो स्कूल से पहुंचने का होता घर नहीं जाती तो अम्मा बिलबिला उठती और देर तक मुझे अपनी नसीहतों की जिद में रखती। मैदान के उस कोने में जहां मूसा अपनी छोटी उंगली से जमीन खोद रहा था, वहां एक छोटा सा गड्ढा बनता जा रहा था। मूसा हमेशा जब कुछ नहीं कर रहा होता तो इस गड्ढे के खोदने में बैठ जाता। आज भी मूसा गड्ढा खोद रहा था और मैं उससे चंद्रा चंद्रा कर सवाल कर रही थी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि इस जगह खजाना है? मुझे यकीन था मूसा मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन उसने अपनी नाक कमीज के दामन से पहुंचते हुए सर उठाया और अपनी सफेद सफेद आंखें मेरी आंखों में डालकर गुर्राया। जिस खजाने की मुझे तलाश है वो उसी जमीन के नीचे है। उसने इन लफ्जों को छुपा कर कहा, लेकिन तुम क्या करोगे इसका? मैं इस खजाने से अपने इलाके की झोंपड़ियां तुड़वा कर पक्के मकान बनाऊंगा और एक स्कूल जहां मेरे इलाके के बच्चे मुफ्त पढ़ा करेंगे। उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी है। मैं इतना खजाना निकालूंगा कि रोज काम पर जाने वाले लोग जिन्हें जब काम नहीं मिलता तो उनके बच्चे भूखे सोते हैं, मैं उन्हें पैसे दूंगा और एक अस्पताल बनाऊंगा जहां मेरे इलाके के लोग जब बीमार होंगे तो जाएंगे। वहां उनके साथ वो सलूक नहीं होगा जो अब सरकारी अस्पतालों में उनके साथ होता है। वो अस्पतालों के अमले की बेदर्दी और बेरहमी के हाथों नहीं मरेंगे। मैंने उससे पूछा भी था, क्या सचमुच ऐसा होता है? वहां कोई ऐसा नहीं होता जो उनको मरने से बचाए? नहीं, वो गरीबों को इस हालत में इस तरह देखते हैं जैसे सड़क पर किसी कुत्ते को। जब बड़ी हो जाना तो जरूर जाना। वहां डॉक्टर भी गरीब मरीजों को सिसकता हुआ देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। मरीज अस्पताल के चक्कर लगाकर ही मर जाता है। मूसा टहलने लगा था, मेरे हिसाब के टीचर की तरह। उसके हाथ पीछे कमर से बंधे हुए थे। उसकी आंखें दूर खला में कुछ घूर रही थीं या अस्पताल बनते हुए देख रही थीं। कुछ देर वो सर झुकाकर खामोशी से टहले गया और मैं उसके इधर से उधर होते हुए कदमों की धमक सुन रही थी, जो उसके पाँव में जूता न होने के बावजूद ऐसी थी जैसे उसने वजनी जूते पहने हों। उसका चेहरा शायद धूप की वजह से नहीं बल्कि अपने इरादों की खलबलाहट से सुर्ख होता जा रहा था। देखो, वो फिर बोला, मेरे इलाके के लोग जब बीमारी से मर रहे होते हैं तो उन्हें सरकारी अस्पतालों में लवारसों की तरह फेंक दिया जाता है। वो अपना इलाज मेरे पैसे से करवाएंगे। मैं हैरत से मुंह खोले मूसा के शानदार कारनामे सुन रही थी, वो जो अब करने जा रहा था। लेकिन उस वक्त जब वो सारा खजाना उसे मिल जाता जिसे वो छोटी उंगली से खोद कर निकालेगा, मेरा दिल दुखी होने लगा। मूसा, फिर तुम उसको रसान रसान क्यों खोद रहे हो?
कहीं से फावड़ा लाओ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। नहीं बेवकूफ, ये खजाना ऐसे ही निकलता है, इसे निकालने में बहुत वक्त लगता है, और अगर किसी और को मालूम हो गया तो इस खजाने को उड़ाकर ले जाएंगे या फिर रोक देंगे। कौन चाहेगा कि हमारी जिंदगियां तब्दील हों। मैं देख रही थी कि मूसा के चेहरे पर जो संजीदगी थी वो उसकी उम्र के किसी भी लड़के में मुझे कभी नजर नहीं आई। वो बोलते हुए कुछ कुछ अब्बा की तरह नजर आ रहा था। अब्बा की भी अक्सर बातें मेरी समझ में नहीं आती थी, जिस तरह मूसा की आज की बातें मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मेरे दिल में कुछ अजीब सा होने लगा था, ऐसे जैसे हवा के झकड़ चल रहे हों कहीं दूर और उनकी आवाजें मुझे सुनाई दे रही हों। मूसा, फिर तो यह खजाना बहुत देर से निकलेगा, मैंने बेताबी से कहा। जब तक तुम बूढ़े भी हो जाओगे और पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मूसा दोबारा मिट्टी खोदने बैठ गया था और उस मिट्टी झाड़ के खड़े होते हुए कहा, कोई दूसरा ये काम शुरू कर देगा। आखिर तब्दीली तो आनी है। क्या हम हमेशा ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे? कभी तो ये मेरे जैसों के पाँव में जूते भी होंगे। ये कहते हुए उसने अपने पाँव की तरफ घूरा, जो पहले से ज्यादा जख्मी और मैले नजर आ रहे थे।